Hello viewers, I am Deepthi. Today on your repeated demand, I am going to make a video on the important derivations in our ICSE class 10 physics subject. In this video, I am going to derive the important relations of our first unit of physics like principle of moments and the moment of couple. Next is P is equal to F into V, then P is equal to under root 2 mk. It means the relation between kinetic energy and momentum. P is equal to mgh upon T, P is equal to mv square upon 2T, U is equal to mgh, K is equal to half mv square, W यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, K plus U is equal to constant, then half mv square is equal to mgh and relation is U is equal to under root 2gh and efficiency is equal to ma upon Vr. आई होप दीज डेरिवेशंस विल गिव यू ए क्विक रिवीजन। और आपकी क्विक रिवीजन के लिए मार्केट में बुक है ओसवाल बुक्स के नाम से, जिसमें प्रीवियस 5 इयर्स के सॉल्व पेपर्स आपको दिए गए हैं। तो पिछले 10 इयर्स में ट्रेंड अब तक में काफी बार चेंज हो चुका है। इनिशियली आपका डिफिकल्टी लेवल जो था वो 10 मार्क्स तक अप्रोक्सीमेटली होता था, लेकिन अब 10 to 15, मे बी 15 to 20, तो इतने मार्क्स हमारे डिफिकल्ट वाले लेवल पे चले जा रहे हैं। तो इसके लिए आप जितनी रिवीजन देंगे उतना अच्छा है। और इस बुक में आपको प्रीवियस 5 इयर्स के बहुत सारे सब्जेक्ट्स के पेपर्स मिल रहे हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सिविक्स, इंग्लिश 1, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी एंड इंग्लिश 2 ऑल्सो। तो ये आपको बहुत अच्छी क्रिस्प रिवीजन दे सकता है, आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी दे सकता है, आपको एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर कर सकता है और वैल्यूएबल एग्जाम इनसाइट्स, बच्चे कहाँ पर गलतियां करते हैं वो पॉइंट्स भी एरर वाले आपको हाईलाइट करके दिए गए हैं। मोरओवर जो आउटडेटेड सिलेबस की चीजें वो भी इसके अंदर पेपर्स में दी गई थी, लेकिन वो हाईलाइटेड है तो आपको पता चल जाएगा। तो आई थिंक ये आप रेकमेंड मैं कर सकती हूँ आपको कि आप इसमें से अच्छी रिवीजन कर सकते हैं ओसवाल बुक्स। So starting with our first unit, force, work, power, energy and machines also. First derivation is based on moment of couple. As you know, couple is related with two equal and opposite forces, parallel forces not acting along the same line. So here you can see these two forces are equal, but one is acting upward and one is acting downward. So the net moment, resultant moment force is here, it is, you can see it is also anti-clockwise, and you can also see here anti-clockwise. So first distance is OA and then here it is OB. So first moment means we can say moment of force of F at point A. So first is moment of force F at point A. A point पे कितना हो जाएगा, हमने मोमेंट का फॉर्मूला किया हुआ है F into D. तो F into D इट मीन्स यहाँ पर F into D कितना है, डिस्टेंस कितना है, इस फोर्स का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से है OA, तो F into OA, यहाँ पर हम कंप्लीट डिस्टेंस लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट B, इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स, तो फोर्स है, दोनों इक्वल फोर्सेज हैं, एंड डिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज OB, so it is OB. Now according to this principle, or you can say moment of couple, कितना आ जाएगा, इसमें आपके लिए डायरेक्शन लिखना भी जरूरी है। तो F into OA के लिए भी हम क्या लिखेंगे, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, एंड इसके लिए सेकंड के लिए भी एंटी क्लॉकवाइज, एंड लास्ट मोमेंट ऑफ कपल कितना वैल्यू हो जाएगा, F into OA, दोनों का सम होता है, रिजल्टेंट होता है, तो F into OB, इट मीन्स F कॉमन एंड OA plus OB. And what is the value of OA and OA plus OB? It is AB. So F into AB, and AB is the distance. So F into D. It means moment of couple is equal to either force into perpendicular distance between the two forces. This is the perpendicular distance between the two forces. This is our first derivation. Now coming to next, it means a principle of moment. Now principle of moment, you know, we have two forces, W1 and W2 acting vertically downward. It means towards gravity, and these are the distances of these weights from the fixed point L1 and L2. Difference is these two acting in the same direction. So our net moment of couple is in the anti-clockwise direction, but here two forces are not equal. So we have to judge where is whether it is clockwise or anti-clockwise moment. So according to principle of moment, what you have read, sum of anti-clockwise moment is equal to sum of clockwise moment. So here first clockwise moment, this is our clockwise moment, this side is our clockwise moment. So clockwise moment is equal to, what is the force here, W1 into distance of this is L1, and anti-clockwise
moment is equal to W2 into L2, this distance. So according to principle of moments, we will write the complete sentence. Moments clockwise is equal to anti-clockwise. So W1 into L1 is equal to W2 into L2. It means our clockwise moment is equal to anti-clockwise moment. But this will happen only in the equilibrium position when the meter rule is horizontal. When the meter rule is horizontal, then W1 L1 is equal to W2 L2. You have already used in formula and numericals. So these are very simple derivations from chapter 1. Now coming to important derivations from chapter 2. Our first formula from second chapter is W is equal to Fs cos theta. But its derivation is not important from examination point of view, although the relevance of this formula is very important for this chapter. Now W is equal to F into S. We know this formula. Now W means work done is equal to F is force and S is displacement. Now the next formula is power. Power is equal to work done upon time, rate of doing work. So W upon T. The W means F into S upon T. Here we can write this as F into S upon T. What is S? It is the distance and divided by time. So distance divided by time means speed. Speed is equal to distance upon time. So this is F into V. So we can directly use in some numericals this formula. P is equal to F into V. This is the important derivation, very simple derivation. You can do the numerical using only this formula also, but it will take your time. In physics paper, your time is very precious. So directly try to use this formula. If velocity is given, then power is equal to F, it is force, and the product of velocity means speed. Now second is kinetic energy. Kinetic energy formula we all know that it is equal to half mv square. Now starting of this formula is K, it means kinetic energy is equal to F into S. Because इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सब वर्क या एनर्जी से रिलेटेड है और दोनों सेम ही बात होते हैं. तो F into S, लेकिन हम S को कहां से लेंगे? हमारा U जो है वो इस केस में फाइनल वेलोसिटी यानी कि v बन जाएगा और v जो है वो 0 बन जाएगा. तो हमारा जो रिलेशन हम यूज करते आए हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as में इस फॉर्मूला को अगर हम चेंज करेंगे तो u की जगह पे हमारे पास v आ जाएगा. इट मींस 0 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. इट मींस अगर मुझे s की वैल्यू निकालनी है तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर एक्सीलरेशन भी इसमें हम नेगेटिव ले रहे हैं क्योंकि हम किसी चीज को थ्रो कर रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी. तो यहाँ पर भी हमारे पास एक माइनस का साइन आएगा. तो ये माइनस का साइन यहाँ पर जो v स्क्वायर है इसके साथ भी तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे. इट मींस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है, या यूं कहूं कि s इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2a. इसी फॉर्मूला को अगर हम इसके अंदर पुट करेंगे जहां हमने ये अभी स्टार्टिंग किया था फॉर्मूला का, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू F इंटू S की जगह पे क्या भर रहे हैं हम v स्क्वायर अपॉन 2a. और F का फॉर्मूला होता क्या है हमारे पास? F इज m इंटू a. तो m इंटू a इंटू v स्क्वायर अपॉन 2a. तो a कैंसिल हो जाएगा, हाफ आ गया, m ऊपर से यहाँ न्यूमरेटर से इंटू वी स्क्वायर. सो द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर एंड द डेरिवेशन इज वेरी सिंपल. हमें वर्क का ही फॉर्मूला यूज करना है, जैसे W इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ इंटू एस. लेकिन इसमें हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो v है क्योंकि चीज चल रही है मोशन में, तभी तो काइनेटिक एनर्जी है. काइनेटिक एनर्जी कब होती है ऑब्जेक्ट के पास? व्हेन इट इज इन मोशन. आप उसकी डेफिनेशन में यही पढ़ते हैं. और फाइनल वेलोसिटी हम यहाँ पर मान लिया कि 0 हो रही है, और अगर 0 नहीं हो रही है तो फिर हम वर्क एनर्जी थ्योरम इसकी डेरिवेशन करेंगे जिसमें हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर रह जाएगा अगर ये 0 नहीं होगा. तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे जिसमें से 0 हो गया, v हो गया, 2as. तो यहां से हम s का फॉर्मूला निकालेंगे कि s इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2a है. इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे इस s की प्लेस पे, तो f इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2a हो गया. और f का फॉर्मूला तो f फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है. तो मास इंटू एक्सेलरेशन वी स्क्वायर अपॉन 2a, a कैंसिल, इट मींस हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला. Now our next formula is based on relation between kinetic energy and momentum. As we know, kinetic energy is equal to half mv square and momentum p is equal to product of mass and velocity m into v. So these two are the relations. So kinetic energy यहाँ से हम अगर निकालेंगे, the formula of v is equal to p upon m. Now kinetic energy is equal to half m and v square. What is the value of v? We have calculated here p upon m, but its square is also there, so p square upon m square. Now half m
m स्क्वायर नीचे है हमारे पास इंटू पी स्क्वायर, इट मीन्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या रह गई पी स्क्वायर अपॉन 2m। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये हमने ये डेरिवेशन की है, और इसी को अगर हम और प्रिसाइज करना चाहेंगे तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m के, या के एम आप कैसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसमें से p की वैल्यू लूंगी तो स्क्वायर हट जाएगा, इट मीन्स अंडर रूट 2mk। We can directly use this formula in examination if the question is asked what is the relation between kinetic energy and momentum. Kinetic energy is half mv square and momentum is the product of mass and velocity. So these are the two relations we have derived just now. One and the same thing. You can learn in any way, either k is equal to p square upon 2m or p is equal to under root 2mk. But this p is momentum. Now next is potential energy is equal to mgh. Now all these energies is equal to w is equal to f into s. So here energy को हमने replace किससे किया, potential energy से, due to height or due to configuration. So u is equal to f into s हम किस पे ले रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हम हाइट की वजह से ले रहे हैं, तो h हो गया। अब f का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, यहाँ एक्सीलरेशन क्या है, ड्यू टू ग्रेविटी है, तो m इंटू जी और इंटू h हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है mgh, जो अभी हम बहुत बार यूज भी करते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। नाउ इसके इन दोनों को अगर आपने समझ ही लिया तो आपके पास क्या, अब ये पावर का फॉर्मूला आ रहा है, तो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी के साथ पावर निकाल रहे हैं, जब काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया टाइम, इस पूरे फॉर्मूले को आप कंपाइल कर दोगे क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर, और ये 2 और टी नीचे आ जाएगा तो 2t। अगर पावर का डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी के साथ करना है तो रिलेशन आ जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन 2t। इसी तरह से अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के साथ करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्मूला क्या हो गया mgh और डिवाइडेड बाय t। तो इसमें तो कोई डेरिवेशन नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी की तो डेरिवेशन भी आपने देखा कितनी सिंपल है, इसमें तो कुछ ज्यादा करना ही नहीं है। तो दीज आर द फॉर्मूला रिलेटेड विद काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिलेशन, पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अगर हम डायरेक्टली दे करके पावर निकालना चाहते हैं तो ये हमने पी पावर के लिए लिया है, जबकि ये पी जो है मोमेंटम के लिए है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, अदरवाइज आप पूरा फॉर्मूले में मतलब पूरा नाम लिखिए कि मोमेंटम है, वैसे तो पी स्मॉल पी हमारा मोमेंटम का ही सिंबल होता है यहाँ, और पावर के लिए कैपिटल पी होता है। Now next is work energy theorem, according to which work done by a force on a moving body is equal to the change in its kinetic energy. So here the formula again start with W is equal to F into S, but we will use the whole formula V square minus U square is equal to 2AS. So S is equal to V square minus U square ऐसे ही रहेगा, और ये 2A उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। We will put this formula in place of this S. So W it means यहाँ पर हम ले किसके ले रहे हैं, इसको वर्क डन के लिए ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो वर्क एनर्जी थ्योरम है, तो W is equal to F, तो F ही रहेगा, और F के साथ हमारे पास S की जगह पे क्या आ गया, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A। अब F का फॉर्मूला आपको पता ही है, M इंटू A है, तो M इंटू A V square minus U square upon 2A, A will get cancel, so here you will get the formula M upon 2, it means half into M, you can write in this way, half m and then v square minus u square, और अगर हम इसको और इलेबोरेट करें तो m v square minus half m u square। सो काइनेटिक एनर्जी से हमने ये फॉर्मूला बनाया है वर्क एनर्जी थ्योरम। सो वर्क डन इज इक्वल टू change in its kinetic energy, it means final kinetic energy minus initial kinetic energy, half m v square minus half m u square. Very simple derivation. Our next derivation is based on principle of conservation of energy, according to which energy can neither be created nor be destroyed. It can only be changed from one form of energy to another form of energy. It means K means kinetic energy plus potential energy for a system. For an isolated system is always remains constant. So this derivation is for K plus U is equal to constant for a freely falling body, and direction of motion is from this A point to this C point. So first the body is at this point A, then B and then C. So due to height at this point A, what type of energy this body will have? It means potential energy. At point A, हम सबसे पहले सारी positions के लिए discuss करेंगे at position A. तो पहले position A के लिए उसके पास सारी energy कौन सी होगी? Height की वजह से. Height कितनी है उसकी? Ground से height is h. So potential energy it means U is equal to
mgh complete है. And kinetic energy, because the body is not in motion, so kinetic energy is equal to 0. So total sum of mechanical energy is equal to k plus u. It means k is 0 and mgh. So total is mgh. So total energy possessed by the body at this point A is equal to mgh. Now coming to position B, it means near about center. So here, because due to height is h minus x, potential energy is possessed by the body. At the same time, due to motion, kinetic energy is also possessed by the body. So what is the value of kinetic energy? So at this point B, we will use the formula again. V square minus u square is equal to 2as. But at this point u becomes 0. At maximum height body कब नीचे आना शुरू होती है? जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उसके बाद वो नीचे मूव करना स्टार्ट करेगी. नीचे आने के बाद वो फिर v वेलोसिटी गेन कर लेगी, लेकिन b पॉइंट पे हम उसको कोई इंटरमीडिएट वेलोसिटी v1 मान लिया है. तो हमारी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर v1 हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. तो v1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा. और ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर ये जो a है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? g. और हाइट यानी उसने कितना यहाँ से डिस्टेंस कवर किया है. डिस्टेंस कवर, बॉडी कहाँ से आ रही है? a पॉइंट से b पॉइंट की तरफ आ रही है. कितना डिस्टेंस कवर किया है? सपोज दिस डिस्टेंस कवर्ड इज x कवर किया है, तो 2gx. इट मींस यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी ऑब्जेक्ट के पास? हाफ m. और v स्क्वायर पे हम ये वाली वैल्यू फिल कर देंगे. तो ये वैल्यू कितनी है? 2g and x. So 2 get cancelled and the value is mg and x. X is the distance covered by the body from A point to B point. And now potential energy. Potential energy is equal to mgh. Height. हाइट कितनी है इस ऑब्जेक्ट की? इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे हाइट कितनी है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल? टोटल हाइट h है. x डिस्टेंस को कवर करके नीचे आ चुका है. इट मींस उसकी हाइट ग्राउंड से अब कितनी है? इट इज h minus x. तो mg h minus x is the height of this body from ground at this position B. B के लिए हम पढ़ रहे हैं. तो अब यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी कितनी अभी हमने पढ़ी? mgx प्लस पोटेंशियल इज mgh. मैं इसको सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इसको खोलूंगी तो mgh और माइनस mgx आ जाएगा. तो mgh and mgx, so both will get cancelled and the final value is again mg and h. Now coming to point C. At point C पोजीशन पे जब यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा पूरा ग्राउंड पे ही पहुंच जाएगा और उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी. तो हम फिर दोबारा से यूज करेंगे अगर फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. तो इसमें हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? v हो गई और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो v स्क्वायर हो गई, 2 हो गया, g हो गया. और अब ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करके आया? पूरा का पूरा h डिस्टेंस कवर करके और A से पूरा H कवर करके ग्राउंड पे आ गया. तो 2gh हम फिल करेंगे. तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ m एंड v स्क्वायर की प्लेस पे 2gh. तो क्या हो गया? 2 कैंसिल हो गया. इट मींस mgh हमारी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है. और पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे कहाँ से आएगी? पोटेंशियल एनर्जी कब होती है? ड्यू टू हाइट. जब वो है ही ग्राउंड लेवल पे तो उसकी कोई हाइट ही नहीं है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0. तो इट मींस इस पॉइंट पे भी उसकी मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh. अभी हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली है इसकी, तो mgh प्लस 0, यानी कि टोटल मिलाकर वो फिर दोबारा से आ जाएगा mgh. इट मींस हमने 3 पोजीशन पे एट पॉइंट A, एट पॉइंट B, एट पॉइंट C, तीनों का सम अब क्या निकला कि k प्लस u जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम है वो तीनों ही कंडीशंस में हमारे पास कांस्टेंट रहा फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी. तो अभी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे दिया गया है तो आपने ये डेरिवेशन करनी है. अगर मान लो उसको थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं और डायरेक्शन ऑफ मोशन ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो भी ऑलमोस्ट सिमिलर डेरिवेशन रहेगी और आंसर आपके पास यही आएगा, एग्जैक्टली mgh के इक्वली आएगा. तो 0 प्लस mgh करके हम फिर दोबारा से mgh दिखाएंगे. इस पोजीशन पे बॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है. मिड पॉइंट पे काइनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है, लेकिन दोनों का सम कैंसिल होने के बाद फिर से mgh आएगा. और जब ग्राउंड लेवल पे आएगा तो उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी क्योंकि कोई हाइट ही नहीं है, लेकिन मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी और उसकी वैल्यू फिर से mgh आ जाएगी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. अगर आप प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर उठा के देखोगे तो पहले बहुत बार डेरिवेशन पेपर में आई हुई है, लेकिन अभी काफी रिसेंट ईयर्स में ये डेरिवेशन नहीं आई है क्योंकि डेरिवेशन पेपर बहुत सिंपल हो जाता है ना. तो आपको समझना है इस डेरिवेशन को और इसको अप्लाई करना है न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स तो आते हैं आप
Our next derivation is related with initial energy of the object and the height gained by the object. यानी कि हम कितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट को देंगे नीचे से जब हम उसको ऊपर थ्रो करेंगे कि वो कितनी हाइट तक पहुंच पाएगा। तो अभी हमने क्या फॉर्मूला में पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी जितनी हम देंगे उस ऑब्जेक्ट को उतनी ही वो हाइट तक जाएगा, यानी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी अटेन होगी। या अगर हमें क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो उतनी ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो इट मींस हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी mgs दोनों इक्वल होने चाहिए और इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमारा एम एम कैंसिल हो जाएगा। इट मींस v जो है वो हमारी क्या बन गई, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल को हम u से दिखाते हैं, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 यहाँ पर चला जाएगा तो 2gh हो गया। तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, जब मैं स्क्वायर हटाऊंगी तो अंडर द रूट आ जाएगा, तो अंडर द रूट 2gh। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड देन हाइट गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर मैंने u दी है और वो कितनी हाइट तक जाएगा तो u इज इक्वल टू अंडर द रूट 2gh। अब एज इट इज न्यूमेरिकल्स में डाल सकते हैं। Now next derivation from next chapter, efficiency is equal to ma upon vr. What is the definition of efficiency? It is the work output divided by work input, ratio of work output to input. तो work output divided by work input. अब work output हम कहाँ देते हैं, लोड पे। तो और work output का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे F into S होता है, लेकिन यहाँ पर उस F को हम लोड से दिखा रहे हैं और उसके डिस्प्लेसमेंट को हम DL से दिखा रहे हैं। ऐसी वर्क इनपुट हम कहाँ देते हैं, जहां हमारा एफर्ट होता है। तो एफर्ट इंटू डीई मतलब एफर्ट आर्म कितना मूव करी है, तो इसको हम इस तरह से शो करेंगे। तो इसमें से एल अपॉन ई को हम अलग कर लेंगे और डी एल और डीई को एक स्टेप में पहले आप सिर्फ इतना लिख दीजिए, फिर एल अपॉन ई है इंटू 1 अपॉन नीचे डीई लिखा रहेगा। इस डी एल को यहां से शिफ्ट करके इसके नीचे डिनोमिनेटर का पार्ट बना देंगे। नाउ एल अपॉन ई हमारे पास पता ही है आपको किस चीज का फॉर्मूला है, L upon E is ma and dE upon dl is VR। तो यहां से दोनों का रिलेशन हमारे पास आ जाएगा, L upon E is ma mechanical advantage and dE upon dl is VR। So total relation of efficiency ma and VR is efficiency is equal to ma or divided by VR, or you can say ma is equal to efficiency into VR, क्योंकि हमें पता है efficiency इन सब के बीच का रिलेशन है। कोई भी मशीन कितनी एफिशिएंट है ये तो पता चलेगा कि उसका एमए और वीआर का रिलेशन क्या है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो पॉसिबल ही नहीं है, इक्वल टू 1 है तो वो आइडियल है, एफिशिएंट 100% एफिशिएंसी को हम 1 कहते हैं। तो इट मींस वो आइडियल सिचुएशन है। बट प्रैक्टिकल सिचुएशन में एफिशिएंसी हमारी लेस देन 1 रहती है, तभी तो हमको पता चलता है कि कहाँ फ्रिक्शन की वजह से या स्ट्रिंग की वजह से हमारा आउटपुट जो है वो कम हो रहा है, यानी हमारी एफिशिएंसी 1 से लेस आ रही है, 100% से कम हो रही है। प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऑलवेज लेस देन 1, आइडियल सिचुएशन में इज इक्वल टू 1। आई विल नॉट से थैंक यू फॉर जस्ट वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज टेक आउट योर पेन एंड नोटबुक एंड डिराइव दीज डेरिवेशंस अलोंग विद मी, तभी इसका फायदा होगा मुझे बनाने का। मैंने पहले भी आपके साथ वीडियोस बनाई हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो इस चैप्टर में आए हैं आप लास्ट ईयर से रेफर कर सकते हैं। अगेन आई एम गोइंग टू मेक अनदर वीडियो जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने जा रही हूँ आपके इसी फर्स्ट यूनिट के लिए। तो अब इसमें आपकी मेहनत की जरूरत है। मेरी मेहनत तभी रंग लाएगी जब उसके अंदर आपकी डेडिकेशन, आपका हार्डवर्क, आपके एफर्ट सिंसियरली मिक्स हो जाएंगे, मिंगल हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर अभी तक नहीं किया, क्योंकि अब मैं लाइव सेशन लेने वाली हूँ। तो लाइव सेशंस का आपके पास तभी आएगा जब आपने उसका बेल आइकन दबाया होगा, तभी आपके पास इंटीमेशन आएगा कि हाँ जी कोई लाइव सेशन आ रहा है। तो आप अपने डाउट्स आकर मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देने में कई बार डिले हो जाता है, मैं ब्रीफली आपको आंसर देती हूँ। लाइव सेशन में आपको डिटेल में आपके आंसर्स मिल जाएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।